Today I'm going to take the same chapter along with your NCERT, though the one which you have already done is also as per NCERT also, and even the notes which are provided to you, they are all NCERT language so that you don't have any problem. Yet I'm just taking the book along with us and starting the chapter once again. When I started, I told you one thing that अगर आज से आप थोड़े टाइम पहले अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और एनीवन हु इज 80s के हो, 90s के हो, देन आस्क देम कि शाहरुख खान का जमाना जब स्टार्ट हो गया था, शाहरुख खान, सलमान एंड ऑल द खान्स, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द रोड्स? रोड ऐसे नहीं होते थे जैसे आज है. Today roads are completely filled with what you call as only and only cars, and then we all are having some or the other gadgets with us. This was not so easy. अगर आज मतलब कि अगर आप पहले किसी से भी पूछते तो कोई भी किसी के घर में ये सब सामान होना was something, rather than approach, affordability. And moreover, there was one status symbol, what you can call, or you can say that jitni zarurat hai wahi cheezein rakho. Today you just open the Google, you want to take anything from a simple pen to anything, and you will find thousands of choices. Thousands of, मैं ये जो word बोल रही हूँ ना बच्चा, thousands, this mean. Let me take one real life example that अभी मतलब I was just thinking about मतलब थोड़ा सा थोड़ी मैं ऐसी हूँ तो I do something or the other, कुछ ना कुछ पागलों वाले काम करती रहती हूँ. मतलब जब भी खाली हूँ तो I like to do something different. तो I just years back I used to sew, बहुत करती थी मैं. फिर अब बीच में I had just left. अभी 1 month से मेरे को लग रहा था कि no, I should have this whenever I'm getting time, so I'll also do something or the other. The moment I put on the Google the same kind of machines, Chinese machine, 1500, Chinese में ही पता नहीं कुछ अलग सा मॉडल था, I don't know the names also, 3000, Akaira हाँ 3000, 4000, and all of them were having similar what you call as specifications. तो ये जो आज हमारे पास इतने चॉइस हैं और पहले हमारे पास चॉइस नहीं था ना, तो ये जो गैप है ना, this has been filled up with the word what we call as globalization. आज हम लोगों के पास सामान का होना जो है, it is not reachability, affordability, status or something. It is just because everyone needs them. तो ये जो हमारे पास है, we have been taken so many sources, and from WTO, Indian Labor, International Labor Organization, Corporate Watch, we have taken all these sources and this chapter has been prepared. Just go through all the colorful pictures that are given on your right side. This is only to show you how markets have been transformed. जैसे अभी आपने अगर आप पहला पढ़ते हो तो there are wide choice of goods and services before us. This is what I told you कि बस एक पेन मतलब डाल दो पेन और पेन में ही वो हजारों पेन दिखाना शुरू कर देता है. This is every season new automobiles, new models. और पहले क्या होता था? Only there were two kinds of cars, Ambassador and Fiat.
ambassador होता था for the people who are working in the government sectors, and Fiat होता था for the common people and for the taxi. अब ऐसा कुछ नहीं है. आज आप चाहे टिन्ड फूड ले लो, चाहे आप कुछ और ले लो, you will find number of products. And this is because the markets have changed. जो मैं आपको बता रही हूँ बार बार, even in my last example also I told you. And this is why पहले क्या होता था, until the middle of 20th century, प्रोडक्शन होता था अपनी कंट्री के अंदर, एंड अगर ये क्रॉस करती थी अपनी बाउंड्रीज को एक जगह से दूसरी, तो व्हाट वी यूज्ड टू कॉल वाज इंपोर्ट. कुछ जरूरी चीजें हम इंपोर्ट करते थे, कुछ जरूरी चीजें हम एक्सपोर्ट करते थे. दैट वाज देयर, ट्रेड वाज देयर, ट्रेड हमारे यहाँ पर हमेशा रहा. बट when the multinational corporations or multinational companies, बेटा दोनों ही allowed हैं, दोनों का मतलब सेम है, when they started emerging on the scene, यानी कि multinational मतलब multi, यानी एक नेशन में नहीं, उनके कई नेशंस में जो है प्रोडक्शन या फिर ब्रांचेस होते हैं. इससे उनको क्या फायदा होता है? दे अर्न मोर प्रॉफिट. पहले क्या होता था, फोर्ड मोटर्स ले लीजिए आप, या फिर आप फोर्ड का जो पहला स्टार्टिंग था वो ले लीजिए आप, ऑटोबॉन ले लीजिए, फॉक्सवैगन ले लीजिए. दे ऑल वर प्रोड्यूस्ड इन देयर ओन कंट्री. नेचुरल है कि उसको वहां से यहाँ तक लाने के लिए, इफ यू आर बाइंग समथिंग लाइक दैट, इट वुड कॉस्ट यू ट्रिपल. I remember there was one very famous incident of one of the very famous star celebrity, not the Bollywood star, celebrity. He had bought, I think, Volkswagen from UK, and उसका जो उस पर जो penalty और ये लगकर, that cost him triple what he bought. Today Volkswagen is easily available in our country. एप्पल फोन्स, ब्लैकबेरी, एक टाइम ऐसा था लोग पागल होते थे कि ब्लैकबेरी फोन होना चाहिए. वो ब्लैकबेरी का पता नहीं क्या एक वो था, सिस्टम था कि उसके अंदर एक अलग सा पासवर्ड होता था, वो बीबी मैसेंजर ही काम करता था. इट वुड नॉट वर्क ऑन द अदर प्लेटफॉर्म, एंड दैट फोन वाज अवेलेबल ओनली इन सेलेक्ट कंट्रीज. बट नाउ ऑल दीज थिंग्स आर नॉट देयर. पहले ये होता था सस्ता फोन एंड्रॉइड, महंगा फोन ऐसा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है. And this uniformity is only because of the multinational companies who have entered into our markets. तो अब ये देख सकते हो एक पिक्चर बनी है. This is about the call center. इंडिया जो है, it is the largest BPO. The full form of BPO is Business Processing Organizations. They are the BPOs are units. आप लोगों के घर में भी कई बार होता होगा कि फोन खराब हो गया, सिम काम नहीं कर रहा है, या फिर कोई सामान आपने खरीदा, आप कहते हो हम कस्टमर केयर को कॉल कर रहे. बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, BPOs यही काम करते हैं. जब आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो ना, तो यू आर नॉट कॉलिंग द कंपनी. कंपनी के जो कॉल सेंटर्स होते हैं, दे आर ऑल देयर, and India is the largest BPO centers. मैन्युफैक्चरिंग कई जगहों के जो हैं वो चाइना से कंपोनेंट्स आते हैं. देन मेक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में असेंबल होता है, एंड देन दे आर ऑल सोल्ड आउट अक्रॉस द वर्ल्ड. और उनके जो कॉल सेंटर्स होते हैं वो इंडिया में होते हैं. मतलब मान लो आपका मोबाइल है, let us take, because that's the very easiest way to tell you. मोबाइल है, मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग जो मेन है वो है आपका यूएस, लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सब आपके चाइना से आते हैं. देन अलग अलग एरियाज हैं, लाइक नोकिया जो है उनका फिनलैंड में है. दे आर हैविंग देयर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इन फिनलैंड.
then वहां से they are assembled in finished in some other country and sold across the world. Whereas जब आपको उसके लिए कोई शिकायत करनी होती है तो दिल्ली के अंदर गुड़गांव, नोएडा, देन बेंगलुरु, ये सारे वो सेंटर्स हैं जहां आपके कॉल सेंटर्स. You have many famous call centers like Genpact. तो this means MNCs वो हैं जो goods को प्रोड्यूस भी करते हैं ग्लोबली एंड सेल भी करते हैं ग्लोबली, बट एक जगह से सामान और एक ही जगह पर उसको असेंबल नहीं किया जाता. एंड व्हाई इंडिया हैज बिकम द सेंटर फॉर पीपीओ. एक तो हमारे यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग यूथ बहुत अच्छे हैं, लर्निंग कैपेसिटी हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, and this particular concept is there in your manufacturing also. So this way अगर हम देखें तो जो MNC है they are linking the world across the globe. Across the globe वो एक दूसरे को जो है लिंक कर रहे हैं. क्यों? पहले क्या होता था, जैसे मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, फोर्ड मोटर्स, क्योंकि आपके बुक में इसका एग्जाम्पल है. Ford used to have its entire production unit, its engineering unit, its marketing unit, everything in US. तो नेचुरल है कि वहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहां का इकोनॉमी, वहां का जो करेंसी रेट ज्यादा है, तो दैट उनको कॉस्ट ज्यादा होता था. बट नाउ द कंपनीज आर इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बच्चा? जब आप शेयर्स खरीदते हो, आप लैंड खरीदते हो, आप बिल्डिंग खरीदते हो, मशीनें खरीदते हो, ये सब इन्वेस्टमेंट होता है. एंड इफ दिस इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय एनी फॉरेन कंपनी और अ मल्टीनेशनल, उसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट. आपके पेपर में ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इज anything which we are buying, जिससे हमें कोई सामान मिलता है. And when this is bought by any multinational, it becomes foreign investment. And when I'm adding one thing, when this investment is directly done, कोई बड़ी कंपनी किसी और कंट्री में लैंड, मशीनरी वगैरह डायरेक्टली खरीदने की कोशिश करती है, उसको हम FDI बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनडायरेक्ट भी है और डायरेक्ट भी है. तो ऐसे हमारे जो मतलब वो है MNCs हैं, वो सेटअप होते हैं. नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फायदा क्या होता है? डेफिनेटली बेटा बहुत फायदा है. MNCs अपने साथ लेकर आते हैं टेक्नोलॉजी, मनी, बहुत सारा मनी, जो कि हमारे मतलब जो छोटे कंट्रीज होते हैं वहां नहीं होते. एंड देन दे ऑल्सो हैव द टेक्नोलॉजी. बट सबसे बड़ा, ये मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दिया था, एंड आई टोल्ड यू दैट आई विल शो यू इन दी ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो. द वेरी कॉमन रूट, आपके पेपर में यही क्वेश्चन आता बेटा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रूट फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज? तो सबसे पहला होता है वो किसी भी लोकल कंपनी को खरीद लेते हैं. जैसे हमारे यहाँ पर परक फूड्स जो है, दैट्स रिफाइंड ऑयल का है, एडिबल ऑयल, खाने वाला. एडिबल मतलब खाने वाला. एंड दे इट वाज बॉट बाय कारगिल, विच इज आई सेड फॉर्चून वगैरह जो है आपके इनके अंडर है. अगर आप पीछे देखोगे तो लिखा हुआ होता है. सो दिस हैज इन्फ्लुएंस्ड. सेकेंडली, हो सकता है ये लोग क्या करें, मतलब दे मे कंट्रोल द प्रोडक्शन. जैसे गारमेंट्स, हमारे इंडिया के अंदर से गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम्स, ये सब जो है, मैंने उस दिन आपको बताया था, जम्मू आपका वो बैट, मीरठ आपका कंप्लीट हब है
I don't know how many of you have gone to Meerut, but my daughter was there in she was in the medical college, तो मैं वहां मैं जाती थी. तो even the most famous batsmen are having the bat which are made from here. Then आपके वो फुटबॉल लुधियाना वगैरह में है, गारमेंट्स, जीन्स, फुटवेयर. यू कैन सी दिस पिक्चर. तो ये जो छोटे छोटे से मतलब घर में स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे सेल इट आउट टू द एमएनसीज. इसका पूरा एक रूट होता है. ऐसा नहीं होता कि एमएनसी गई और उन्होंने बोला अच्छा लाओ भाई सामान दे दो. ऐसा नहीं होता. देयर इज अ प्रॉपर रूट ऑफ बाइंग इट. एंड देन ये लोग क्या करते हैं, एमएनसी के पास पैसा होता है, पावर होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से उसका कॉस्ट रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, jeans produced in a developing country is sold in US for 6,500. Just imagine. Just imagine. Then they may even partner with the local companies like Tata, AIG, Birla Sun Life, Bajaj Allianz. ये services है. Then you have the scooters. तो there are many joint ventures जहां पर कंपनीज जो है वो दो कंपनीज मिल जाती हैं एंड दे पार्टनरशिप करके दे गेट अ बेटर प्रोडक्ट. इन दिस मैनर the production is widely dispersed, location is getting interlinked. अगर आपके पेपर में ये ऐसा लिखा हुआ आ गया जो आपके ब्लैक में है, तो आपको ये तीनों रूट्स बताने हैं. मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ. ये मैंने आपको बार बार फोर्ड का बताया था. दिस एक्चुअल में ये पूरा जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पेपर में आया था एक बार, नॉट वन, एक ही बार आया था, बट ये आया था. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन. Ford Motors, an American company, is one of the world's largest automobile manufacturer. Right now, उन्होंने इंडिया के अंदर अपना जो ऑपरेशन है वो बंद कर दिया है. They came to India in 1995, spent around 1700 crore to set up a plant near Chennai. और ये उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ किया था. और इस तरीके से उन्होंने इंडिया में सेटअप करके, वो देख सकते हो आप फोटो में, यहाँ से आपके जो कार्स हैं या फिर आपके जो जीप्स वगैरह है, दे आर ऑल सोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. राइट नाउ एप्पल, सैमसंग, जितने भी ये बिग जायंट्स हैं, दे हैव स्टार्टेड द प्रोडक्शन इन दिस मैनर. नाउ हाउ डस, पेपर का क्वेश्चन है, हाउ डस फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट द मार्केट. मतलब मार्केट एक कैसा हो जाता है. तो जो फॉरेन ट्रेड है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे. इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स to reach beyond the domestic market. पहले क्या था, जो कंट्री जैसा बनाती थी वो वहीं रख सकती थी, वहीं बेच सकती थी. They could not sell their products across the border, but now they can sell it. They can also compete in the market located in other countries. Like आज हमारे पास मारुति है जो इंडिया का है अब, क्योंकि सुजुकी हट गया उसके. अब आपको पता है, इट इज नॉट मारुति सुजुकी, इट इज नाउ मारुति. राइट, मारुति का बलिनो ऐसे कहते हैं. तो नाउ मारुति इज कंपीटिंग विद ऑल दोज कंपनीज विच आर मल्टीनेशनल. तो दिस वे हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं, they are not only competing in terms of technology, but they can also sell their products across the world. Wipro, Infosys, Ranbaxy. This is a one marker question. Abhi aayega ye question. Then for the buyers, hamare liye we are able to have choice of goods. मैंने अभी आपको अपना एक एग्जाम्पल बताया था, which is really an example. I was literally like कि मैं ये वाला खरीद लेती हूँ, ये प्लास्टिक, मतलब सारी प्लास्टिक बॉडीज हैं. Then ultimately I decided नहीं, मैं उषा ही खरीदूंगी, because वो थोड़ा मतलब पुराना सेट का है.
in this manner what happens is, but choice हमारे पास बहुत है. आज आप बोलो, मैं तो आधे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम भी नहीं समझ सकती हूँ, इतने ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं. एंड माय डॉटर्स टेल मी, मम्मा दिस इज अ ब्रांड, दिस इज ब्रांड. आई सेड व्हेन दिस ब्रांड, ये ब्रांड कब पैदा हुआ था भाई? बिकॉज हम लोगों को पता है ब्रांड मतलब द वन विच हमारे मुंह में आता था. अब वो एक मतलब की होता है, और देर आर 10 ब्रांड्स. यू गो टू द मार्केट एंड यू विल फाइंड 10 ब्रांड्स. हम लोगों को होता था व्हेन वी वर यंग, तो रेवलॉन, अच्छा लिपस्टिक है तो रेवलॉन ले लो, या फिर शहनाज हुसैन ले लो इफ यू आर गोइंग फॉर द हर्बल. एंड और मतलब कि लैक्मी वाज द वन एंड वन विच वाज सेट टू की भाई ऑल टाइम. फिर ब्लू हेवन. और आज आप मार्केट में चले जाओ, जैसे मैम ये मैट है, ये माई ग्लैम है, ये शुगर है, ये कलर प्लस है. What are these? These are integration. We have the wider choice. This is what I told you that day कि Chinese market. ये पेपर में क्वेश्चन लास्ट ईयर या उससे पहले साल आया था कि अगर इंडिया, if India puts tax on Chinese toys, then what will happen? So as I said, हमारे यहाँ पहले होता था लियो टॉयज. And Chinese manufacturers learn of an opportunity to export toys to India, where toys are sold at a high price. पहले यही था, लियो टॉयज था. But then what happened? They started exporting the plastic toys to India. अब हमारे पास में क्या है, इंडियन टॉयज भी थे और चाइनीज भी, लेकिन चाइनीज टॉयज देखने में बड़े सुंदर लगते थे. And within a short span it became very popular. और उसकी वजह से डेफिनेटली हमारे पास चॉइस है. We have greater number of buyers also. On the other hand, जो हमारे Indian toy makers हैं, they have faced the what you call as loss. But yes, अगर goods एक मार्केट की जगह 4 मार्केट में बिकता है, तो then पहले क्या था, अगर आप कोई imported सामान मंगवाते हो तो that would cost you 100 rupees. Indian है तो वो 10 रुपए. तो natural है कि everyone will buy Indian. But now whether you are buying an imported or an Indian, both of them cost the same. The prices of similar goods in two markets tend to become equal. And producers in two countries now closely compete against each other, even though they are separated. मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि there are so many brands of lipstick, like one is there, I don't know, I think MAC है या Kian ऐसा कुछ है. तो that's not an Indian brand, yet उसका प्राइस और इंडियन ब्रांड का प्राइस सेम है. Foreign trade thus results in connecting the markets or integration of markets in different countries. इसमें आपने कौन सा लिखना है बच्चा? एक, the producers are now able to compete at the global level. और दूसरा point, the consumers have wider choice. ये दो आंसर्स आएंगे इस वाले में, right? So this is how foreign trade has, मतलब foreign investment has given us wider choice. तो ये फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन, ये सब कैसे इंटरलिंक हुआ? पहले क्यों नहीं था भाई? पहले भी था. इंडिया हैज बीन कनेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड विथ लैंड रूट, सी रूट, पहले भी था. लेकिन जो आपका फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता था, फ्री मतलब विदाउट मच टैक्स, विदाउट मच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो नहीं था. पहले भी आपके बाहर से यहाँ पे लिपस्टिक्स भी आते थे, काम मतलब कि फोन्स भी आते थे, आपके टेलीफोन भी आते थे, बट देयर कॉस्ट वुड बी मोर. But now because of many factors, ये जो हमारे taxes हैं, duties हैं, इनको हमने remove कर दिया है. There is a free flow of trade and services. The foreign investment by multinational is increasing. जहां आपका cheap production like India, China, Vietnam, Thailand, in ऐसी countries में, a large part of this trade is also controlled by manufacturing MNCs.
For instance, a car manufacturing plant of Ford Motors not only produce cars for Indian market but for others. तो इनका जो मतलब कि पॉलिसी होता है वो यूनिफॉर्म होता है. उसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैकडोनाल्ड. You go to any McDonald across India, you will find the same kind of burger. The only difference between Indian McDonald and any other country's McDonald is, जो आप में से कोई बच्चा बाहर गया हो तो वो जानता है the menu. Like aloo tikki burger is there only in India. It's not found anywhere else. Similarly, certain non-veg are found only in Islamic countries, not in other countries. Say beef. Then in India, they use a refined oil, whereas in other countries they use a fish oil. लेकिन बाकी जो उनके ingredients होते हैं, उनका जो bun है या उनका जो sauce है, they are all uniform. उनकी जो policies हैं, उसे कैसे बेचना है, across the world आप जाओगे मैकडोनाल्ड का सारा लोगो एक जैसा ही होगा, देखने में भी एक जैसा ही होगा. You will not find any difference. This is only because of what we call uniform policy. So this is globalization, the rapid integration of interconnection between countries. Now, saman, service, investment, technology, जो पहले सिर्फ कुछ कंट्रीज में होते थे, हमारे पास नहीं होते थे. Years before you ask health services में अगर किसी कोई बीमार होता था तो इंडिया के अंदर उसका इलाज नहीं होता था. The people had to travel across the world to get that. But now it is not like that. आज आपके पास अगर टेक्नोलॉजी ना भी हो ना, वर्चुअल प्लेटफॉर्म यूजिंग जूम मीटिंग, यूजिंग द व्हाट यू कॉल एज स्काइप एंड ऑल, उसको हम यूज करते हैं. दिस इज हाउ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, पीपल सब एक जगह से दूसरी जगह पर विदाउट मच रेस्ट्रिक्शंस हम लोग जा पा रहे. व्हाई? फर्स्ट, रैपिड इंप्रूवमेंट. ये मैंने उस दिन करवाया था आपको. टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड गवर्नमेंट पॉलिसी. These are the factors that have enabled globalization. I told you this that कि पहले आपका मीट जो है वो रॉ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता था. But now for the past 50 years, there has been improvement in transport technology. Containers. पहले हमारे जो containers होते थे that could not be loaded. अभी आप देखोगे, अगर आप फोटो देखते हो तो they are having all the pulleys, they are having all kinds of crane. इससे speed आपका, then the content, ये सब ज्यादा हो गया है. Moreover, पहले आपका एयरलाइंस आपके बहुत ही महंगे होते थे. नाउ वी आर एबल टू कई चीजें हम लोग शिप से भेजते हैं तो कुछ चीजों को हम एयरलाइन से भी भेज पाते हैं. दिस हैज आल्सो इम्प्रूव्ड. टुडे वी आर हैविंग नंबर ऑफ एविएशन एयरलाइंस आपके बहुत सारे हैं. देन आईटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी टेलीग्राफ. आप लोगों ने नहीं सुना होगा. टेलीग्राफ we will be doing in lifelines of national economy Jio. टेलीग्राफ होता था, बहुत ही टेलीग्राम बोलते थे हम. टेलीग्राफ इज अ वे एंड टेलीग्राम होता था. टेलीग्राम का मतलब समझ लेना कि घर में लोग, सच में मैंने तो घर में देखा, ऐसे करते थे, हे भगवान हे भगवान हे भगवान. बिकॉज टेलीग्राम वॉज सेंट, इट वॉज इनफैक्ट 2 घंटे में या 3 घंटे में आपका मैसेज पहुंच जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. It will cost more, and it was used only if there was some birth or some death. But it is also an invention. पहले ये भी चीज नहीं थी. पहले वो सलमान खान का कबूतर होता था, है ना. But now we are having telephone, mobile phones, email, voice mail, एंड देन आजकल तो और भी बहुत सारे आपके सोशल मतलब एप्स आ गए, लाइक व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम.
मतलब ये वाला टेलीग्राम नहीं, वो जो ऐप वाला टेलीग्राम. एंड दीज आर हेल्पिंग अस इन मेनी वेज. ये पेपर में, ये मैंने आपको उस दिन बताया था कि एक मैगजीन है जो लंदन के लिए पब्लिश होता है, लेकिन उसे प्रिंट कहाँ करते हैं? दिल्ली में. जो उसका टेक्स्ट है उसे दिल्ली ऑफिस थ्रू द मेल सेंड करते हैं. यहाँ हम उस मैगजीन की पूरी डिजाइनिंग करते हैं एंड देन द मैगजीन्स आर सेंड बाय एयर टू लंदन. सोचो, दिस इज बिकॉज यहाँ आपका कॉस्ट फैक्टर कम है, दैट इज व्हाई. And the payment is received through e-banking. That is how we are interlinked. These are the ways through which globalization और easy हो गया है. वो सामान जो पहले एक जगह पे बनता था, आज वो हर कंट्री में बन जाता है. हमारे इंडियन कंपनीज भी जो है अपना प्रोडक्शन दूसरी कंट्रीज में रखते हैं. देयर आर मेनी कंपनीज विच आर, हाँ, कुछ का ऐसा नहीं है, दे ओनली सेंड देयर मटेरियल्स. कुछ का है, दे आर हैविंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आल्सो. द नेक्स्ट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. और पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आपका आता है बच्चा लिबरलाइजेशन. ये वाला पेपर में ना, ये दिस क्वेश्चन हैड कम. ये पेपर में ऐसे का ऐसा ही क्वेश्चन आया था. सपोज द इंडियन गवर्नमेंट puts a tax on import of toys. तो क्या होगा? नेचुरल है कि उन लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, है ना. तो बायर्स विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन इंपोर्टेड टॉयज. फिर चाइना के लोग उसे उस सस्ते दाम में नहीं बेच पाएंगे और इंडियन जो टॉय मेकर्स हैं उनको फायदा हो जाएगा. और ये पेपर में ये सेम क्वेश्चन आया था और ये इसका आंसर है. Tax on imports is an example of trade barrier. Why it is called an example? Because trade barrier में बहुत सारी चीजें होती हैं. Like barrier का मतलब होता है some restrictions. और मैंने आपको बताया था 1990 से पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे. इंपोर्ट करना तो बहुत बड़ी बात होती थी. द इंडियन गवर्नमेंट, ये पूरा का पूरा जो है ये वाला और नेक्स्ट पैराग्राफ हैज कम इन द पेपर फॉर मेनी टाइम्स. The Indian government after independence had put barriers to foreign trade and foreign investment. क्यों किया था? हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा था, हम लोगों ने मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ा है, और आपने देखा था उस वक्त ब्रिटिश हैड कंप्लीटली ruined our industries. So हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको फॉरेन कंपटीशन से, क्योंकि अगर वो सामान इंपोर्ट करके सस्ता लेकर भी आ जाते, फिर वो इंडिया में जो रॉ मटेरियल्स हैं या इंडिया में जो चीजें हैं उसको यूज नहीं करते. सो कंपटीशन फ्रॉम imports at that stage would not have allowed the industries to come up. Thus, India allowed imports of only essential items like कुछ मशीनरी, फर्टिलाइजर्स में पोटैश, पेट्रोलियम, ये. बट इन 1991 ये पेपर में क्वेश्चन भी आया था आपका, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था, व्हेन अंडर आई थिंक पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जो थे, ही वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर. एट दैट स्टेज India had removed the trade barriers and they had adopted LPG. LPG. L stands for liberalization, P stands for privatization, and G stands for globalization. लिबरलाइजेशन में उन्होंने कई जो पहले लाइसेंस वाला जो सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया था. सो फ्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आपका जो है पॉलिसी आ गया था. मतलब इट वाज इजी नाउ. प्राइवेटाइजेशन में मेनी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेटाइज कर दिया गया था. दे वर गिवन टू द प्राइवेट कंपनीज, जिससे वो लोग अच्छे गुड्स को मैन्युफैक्चर करें. And globalization में they allowed the multinational companies to invest in our country.
Why this was done? ये पेपर में आया हुआ है. The government decided that the time had come for the Indian producers to compete with producers around the globe, and this would improve the performance of producers within the country, क्योंकि हमारी quality भी improve होगी. And this was also supported by international organizations like WTO. So the barriers were removed to large extent, means goods could be imported and exported easily, and foreign companies could set up their factories and offices there. Removing barriers or restrictions set up by government is what we call as liberalization. ये 1 marker question है. तो लिबरलाइजेशन से क्या हुआ है कि हम अब इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है. अगर आप में से कल को कोई भी बच्चा जो है, द चाइल्ड मतलब कि जो बच्चा है मतलब कि wants to become a businessman में the child does not want to have his or her industry here. वो बाहर से सामान लाकर यहाँ बेचना चाहता है. Now it is easy. टैक्स पहले बहुत होता था, then now they have removed that so that foreign companies invest करेंगी तो उनसे हमें रेवेन्यू भी मिलता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, एंड हमें बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, और हमारे यहाँ के लोग भी अब दूसरी कंट्रीज में अपना सामान बेच सकते हैं. एंड सामान बेचना बड़ी बात नहीं होती है. लाइक लेट अस से रिलायंस इंडस्ट्री, तो रिलायंस अपना सारा सामान हर चीज यहीं पे थोड़ी बनाता है. they are getting most of their raw materials from China. तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट अगर हमें कम पड़ जाए तो हमारा कॉस्ट कम हो जाता है. कॉस्ट कम हो जाता है तो जो सामान की कीमत होती है वो कम हो जाती है. As we have talked about international organization, इनमें से सबसे पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका WTO है. उस दिन आपको मैंने बताया था. WTO को पहले हम GATT के नाम से जानते थे. ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि which उसका नाम क्या, what was the preceder of WTO, मतलब उसको पहले किस नाम से जानते थे? GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ. पहले ये था कि सारी कंट्रीज एक जनरलाइज एग्रीमेंट रखती थी, बट बाद में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन आया जिसका एम था इंटरनेशनल ट्रेड में लिबरल पॉलिसीज. जो आपके रिच कंट्रीज हैं, दे शुड गिव बेनिफिट्स टू द डेवलपिंग कंट्रीज. एंड इन दिस मैनर WTO जो है उसने हेल्प किया है टू हैव फ्री ट्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड इफ देयर इज एनी what you call as dispute, then the disputes are also settled. But yes, WTO के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, और पेपर में आया था, do you think that WTO is democratic? तो नो, क्योंकि WTO के रूल्स है कि जो आपके रिच कंट्रीज हैं, दे शुड गिव बेनिफिट्स टू द डेवलपिंग कंट्रीज. लेकिन यूएस, जहां जीडीपी बहुत अच्छा है, जहां का आपका ओवरऑल इकोनॉमी बहुत अच्छा है, मतलब कि जो वहां पे लोग हैं, दोज हु आर एंगेज्ड इन फार्मिंग, उनको यूएस, उनका जो गवर्नमेंट है वो काफी पैसा देता है. तो यूएस के जो फार्मर्स हैं, दे कैन सेल देयर फार्म प्रोडक्ट्स एट एबनॉर्मली लो प्राइसेस. अब नेचुरल है कि अगर वो सस्ता बेचेंगे और हम महंगा बेचेंगे तो हमारा सामान कौन खरीदेगा बताओ? आप मार्केट जाते हो, एक सिंपल सा फंडा है, एक ही जैसा सामान है, कंपनी भी एक है, ठीक है, तो आप कौन सा सामान खरीदोगे? इट इज ऑब्वियस कि आप वो सामान खरीदोगे, दोनों का नाम एक ही है, दोनों एक ही जैसा लग रहा है, एक ही कंपनी का है, तो नेचुरल है कि अगर पहला दुकानदार उसे 10 रुपए में दे रहा, दूसरा 20 में दे रहा, तो आप पहले वाले में जाओगे. एंड
this is the debate ki the WTO is not taking measures to curb the problems of the countries. ये देखो, ये US जो है, they मतलब कि it is the duty of WTO की ये ड्यूटी है कि वो यूएस को समझाए कि उनके फार्मर्स इतने सस्ते दामों पर ना बेचे, क्योंकि उससे तो सारा फायदा उनको ही होगा। और वो सस्ते दामों में क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनका गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रहा है। अब हर गवर्नमेंट तो सपोर्ट नहीं कर सकती है ना। सो द WTO हैज टू इंटरफेयर एंड रूल आउट दिस प्रॉब्लम। इसके पीछे काफी झगड़े चल भी रहे हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, पेपर में आया था, द इम्पैक्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म। मतलब पॉजिटिव भी है and negative bhi hai. And I told you sometimes it would be written 3 positive 2 negative या 2 positive and 3 negatives. So globalization and greater competition, it is both for local and foreign producers. कुछ आपके जो वेल ऑफ है, ये ना फिल इन द ब्लैंक्स में आया था लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा एमसीक्यू और वो था ना, तो पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शंस, क्योंकि वो लोग ज्यादा खरीद पाते हैं, एंड दैट इज व्हाई people these days enjoy much higher standard of living than it was possible earlier. Now, what are the positive effects? First, MNC have increased their investment in India over the past 20 years. उन लोगों को फायदा हुआ है क्योंकि इंडिया ने काफी अच्छी पॉलिसीज डाल रखी हैं। तो हमारे यहाँ पर सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, बैंकिंग, इसके काफी वेल ऑफ बायर्स है। दिस हैज रिजल्टेड इन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो लोकल कंपनी सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स, जो इनको रॉ मटेरियल्स दे रही है उनको भी फायदा हो गया है। तो ये तो पहला हो गया हमारा। सेकेंडली, several top most Indian companies have been able to benefit from increased competition. Now, सबके पास तो नहीं है, लेकिन जो कंपनीज कर पाई है, they have collaborated, like I told you, हमारे यहाँ के जितने भी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, they have collaborated. Moreover, globalization has enabled some Indian companies to emerge as MNCs themselves. Tata, Infosys, Ranbaxy, Asian Paints, Sundaram, अब तो बहुत सारे हैं. Now every second company is having their production unit, their branch unit across the world. It has also, ये third है, it has also created new opportunities for companies providing services, particularly IT. जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, कॉल सेंटर्स हमारे यहाँ पर है, डाटा एंट्री, अकाउंट्स, ये सब कंट्रीज लाइक इंडिया के अंदर आपका जो है हो जाता है, एंड दे आर। तो इससे क्या हुआ कि जहां जहां आईटी कंपनीज फॉर्म हो रही है, वहां उन कंट्रीज को काफी फायदा हो रहा है। बट देयर हैव बीन सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स, लाइक स्मॉल प्रोड्यूसर्स या तो बेचारे compete करते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, रवि वाला हैदराबाद का, तमिलनाडु का है, दैट उसने एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की थी कैपेसिटर्स की, जो बैटरी में डलता है, एंड दैट वाज इन होसूर. होसूर इज एक्चुअली नॉट एन इंडस्ट्रियल टाउन इन तमिलनाडु, इट इज इन कर्नाटका. नाउ उसने काफी एक्सपैंड किया, उसके साथ 20 वर्कर्स भी थे. बाद में जब आपके MNCs आ गए, तो they forced the Indian television company to move into assembling activities for MNCs. पहले तो लोग कैपेसिटर्स लगाते थे, बट नाउ they would prefer to import, क्योंकि importing में उनको ज्यादा सस्ता मिल रहा था. तो अब रवि now produces less than half the capacitors जो पहले 2000 में करता था. कुछ लोगों ने अपना बिजनेस भी बंद कर दिया है.
तो बैटरी कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉय, टायर इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट, वेजिटेबल ऑयल्स ऐसी हैं जहां छोटे प्रोड्यूसर्स ईदर दे हैव शट डाउन और दे आर फेसिंग टिफ कंपटीशन। उसकी वजह से कई लोग जॉबलेस हो गए हैं। नाउ थर्ड प्रॉब्लम इज अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। एज आई टोल्ड यू, इंटरनेशनल लेबर लॉ हमारे यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, इंडिया का लेबर लॉ एमएनसी पर नहीं होता है। अब गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी दी थी कि भाई आप थोड़ा सा लेबर लॉ को फ्लेक्सिबल करो आप, क्योंकि उनको था कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। गवर्नमेंट वाज नॉट रॉन्ग, गवर्नमेंट को था कि अब ज्यादा लोग काम करेंगे, बट एट द सेम टाइम ज्यादा टाइम ओवर, मतलब कि जॉब्स जो है वो सिक्योर नहीं है। माय सिस्टर्स हस्बैंड इज वर्किंग इन एमएनसी, सॉरी एक्सपोर्ट कंपनी। उनकी कंपनी में ना दे हैव गिवन एनी अपॉइंटमेंट, और मतलब ही इज वर्किंग फॉर द पास्ट 20 years and he is working in one of the largest export company, Shahi Exports, but they don't have any security। मतलब उनके ऑफिस में ना ही कोई एलटीसी होती है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटीज है, और ना ही कोई और फैसिलिटीज। लाइक माय हस्बैंड गेट्स ऑल द फैसिलिटीज, दो माय हस्बैंड इज इन अ हायर पोस्ट बट स्टिल ही गेट्स ऑल द फैसिलिटीज। उनके में कोई फैसिलिटीज नहीं है। द रीजन, और कब जब मन कर तो बोलते हैं नौकरी छोड़ के चले जाओ। व्हेन द पैंडेमिक वाज देयर दे हैड कट द सैलरीज। तो लार्ज एमएनसी स्पेसिफिकली इन द गारमेंट इंडस्ट्रीज जो है वो लोग हमारे यहाँ से करवाते हैं काम। तो वो क्या करते हैं, टू कट द लेबर कॉस्ट, where earlier a factory used to employ workers on a permanent basis, now they employ workers on temporary basis. Workers have to put in a very long working hour, night shifts, wages are low, and workers are forced to work overtime to make both ends meet. So while this competition among the garment exporters are allowed the MNCs to make large profits, the workers are denied the fair share. हम लोगों ने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में पढ़ा था बेटा, दैट वर्कर्स इन द डिसऑर्गेनाइज सेक्टर्स फेस प्रॉब्लम। तो यही है वो प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में नहीं है। एंड दिस हैज बिकम कॉमन टू मेनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड सर्विसेज। Most workers today are employed in the unorganized sectors. So now what happens is उनके पास जो है they don't have the proper salaries, they don't get the benefits. अब Indian labor law, Indian company act के अंदर they are having all these, but they are not employed there, क्योंकि वो तो MNCs है। उनका जो सिस्टम है that goes according to their country. So what can we do to ensure fair globalization? ये है आपका क्वेश्चन। The above evidence indicates not everyone is benefited from globalization. People with education, skill and wealth have made use. Definitely जो भाई ITs में है, आप देखो 1990s में कितने कंप्यूटर इंजीनियर्स थे और 2022 में देख लो 10 में से 9.5 लोग जो हैं वो कंप्यूटर्स में। मैं 9.5 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो कहते हैं मैम हम क्या ले रहे हैं, मैम हम PCMB ले रहे हैं। बेटा क्यों ले रहे हो? मैम अगर हमारा बायो में नहीं होगा तो फिर हम लोग जो है मैम हम IT में चले जाएंगे। 90% ऑफ माई स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग PCM लेटर ऑन डू BCA। इंजीनियरिंग नहीं करते, BCA करते हैं, प्रोग्रामिंग में जाते हैं। दिस इज देयर। एंड 90% ऑफ तमिलनाडु पॉपुलेशन जिसने मतलब की किया। तमिलनाडु में तो अगर आप तमिल मूवीज या तेलुगु मूवी देखोगे ना, उसमें तो एक मजाक है, अगर आप तमिलनाडु में पैदा हुए तो आपका एक बच्चा तो यूएस में रहेगा ही रहेगा। मेरे घर का पूरा खानदान में ऐसा ही है, 1 child from 1 family is there in US because they can get the benefits, but हम जैसे टीचिंग में है we don't get any benefits. Then there are many other unskilled way, उनको नहीं मिलता है। Since globalization is a reality, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? When
globalization would create opportunities for all and the benefits are also equal. तो कैसे होगा? First, the government can play a major role. Its policies must protect the interest not only for the rich and powerful but for all the countries. यानी कि specifically the government can ensure the labor laws are properly implemented, the workers get their rights. पहला. Second, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, गवर्नमेंट कैन हेल्प टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. उनको लोन दे दें, उनको कुछ फैसिलिटी दें, उनको कुछ मतलब की ट्रेनिंग दें. इफ नेसेसरी गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स थोड़ा टाइम के लिए. इट कैन नेगोशिएट विद डब्ल्यूटीओ, जैसे यूएस के साथ हो रहा है, तो वो डब्ल्यूटीओ को थोड़ा समझा सकते हैं, उनके साथ में बातचीत कर सकते हैं. एंड जो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर फाइट कर सकते हैं अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. देयर हैव बीन मैसिव कैंपेन्स एंड रिप्रेजेंटेशन by people's organization relating to trade and investment at the WTO. कई जगहों पे हो रहा है. As I said, I told you कि there are many people who say that globalization is not only trade globalization, it is also cultural globalization. तो कई कंट्रीज में इसके खिलाफ आवाज भी उठाई गई है कि इट शुड बी रिड्यूस्ड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है जिससे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और अट्रैक्ट करें. फर्स्ट तो पॉलिसी है. Second is the central and state governments are taking special steps to attract foreign companies to invest in India. As I told you, Noida, that day I told you, they set up industrial zones जिसमें ऐसी companies को have the world class facilities of electricity, water, road, transport, storage, recreation, सब कुछ होता है वहाँ पे. So when the companies set up their units there, they do not have to pay taxes for at least 5 years. And then the government has allowed the flexibility in the labor law also, जो मैंने भी आपको बताया था. मतलब in the recent year, the government has allowed companies to ignore many of these. Instead of hiring workers on a regular base, they are allowed to hire them for a flexible period. इससे कंपनी का कॉस्ट कम हो जाता है. बट इट इज हाउ द लेबर्स आर अफेक्टेड, क्योंकि जब उनका काम खत्म हो जाता है, जब रश पीरियड खत्म हो जाता है, वो नौकरी से निकाल देते हैं. एंड देन दीज लेबर्स आर रेंडर्ड वर्कलेस. येट दिस इज हाउ द गवर्नमेंट, the countries across the world have come with one. पहले क्या होता था, एक दूसरे से हम लड़ते थे. चलो उस कंट्री में फ्रांस में ज्यादा है तो फ्रांस को जाकर कॉन्कर करें, वहां ज्यादा है उनको कॉन्कर करें. बट नाउ द कॉन्कर इज नॉट थ्रू एनी वेपन, इट इज थ्रू ट्रेड एंड ट्रेड बेसिकली. और इस ट्रेड से आपका सर्विसेज भी आ गया है. नाउ द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इज ऑल्सो ईजी. Of course, it is also giving you the negative or demerits of diseases, bird flu, swine flu, COVID. ये सब भी आपका ग्लोबलाइजेशन ही है. अगर ये अर्ली पीरियड होता तो these diseases must not have traveled. तो इसके पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों रहते हैं. इट रिक्वायर्स डेफिनेटली, अब बहुत जरूरी भी है एमएनसीज हो. कल आप लोग पढ़ रहे हो, व्हाई यू ऑल आर स्टडिंग, so that you are getting good stream, then good jobs. एंड अगर आपको गुड जॉब करना है तो मल्टीनेशनल कंपनीज का रहना या फिर एटलीस्ट जो फैसिलिटीज हैं which have been provided by them, they are very important. Today work is not work. Today work has become our routine. आज कंपनीज अगर कहती हैं कि ओके यू वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, रात को 12 बजे मीटिंग चल रही होती है, बिकॉज वहां की कंपनी
का और हमारा जो टाइमिंग है, तो यू डोंट हैव द टाइम लिमिट्स नाउ, यू डोंट हैव द कंस्ट्रेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नाउ. ओके, अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है कोई बात नहीं, आपको आना नहीं है कोई बात नहीं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म में हम मीटिंग कर लेते हैं. So we need all these things, but at the same time, we also need to see that it is giving equal share to everyone. So this is the chapter globalization and its impact on Indian economy, the economy which was not that much good, but now it is boosting with Startup India, with Skill India, मेक इन इंडिया. ये चीजें और हम मतलब कि द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंश्योर यहां पर मेक इन इंडिया में क्या होगा, द कंपनीज हैव टू मेक हियर, द इंडियन ब्रेन्स हैव टू बी यूज्ड, द इंडियन रॉ मटेरियल्स हैव टू बी यूज्ड. सो दे आर ट्राइंग टू गिव मोर बेनिफिट्स टू एवरीवन. सो दिस इज हाउ इकोनॉमी हमारा जो है वो ग्रो करता है, बिकॉज इट ऑल्सो गिव्स यू द रेवेन्यू. That's the chapter globalization.